بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں آپ کی ٹیچر بشرا ارشد آپ کو اردو پڑھا رہی ہوں جماعت ہشتم کی، اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 2۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ ہے۔ یہاں سے ہم نے آج سٹارٹ لینا ہے۔ اس سے پہلے کا جو پیراگراف تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ ہے۔ خشک سالی یعنی قحط کا دورہ ہے، چرچا ہے، یعنی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے نہ غلہ ہے نہ اناج ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے، اناج سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار بہت سی قطاروں میں مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، حدود میں سرحد میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں، چمک اٹھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اطمینان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ، یہ اناج خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے بیچ کر زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے، زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جن کا شمار مدینے کے تاجروں میں ہوتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، اس وجہ سے انہیں 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے، جن کو گنا جاتا ہے مدینے کے بڑے تاجروں میں۔ مدینے کا ہر تاجر، ہر تجارت کرنے والا آپ کے پاس دوڑا آتا ہے، بھاگا چلا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے، زیادہ سے زیادہ اناج حاصل کر لے اور خوب نفع کمائے اور خوب منافع حاصل کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا، یعنی وہ اگر ان سے غلہ خریدے گا تو کتنا منافع، وہ کتنا نفع ان کو دے سکتا ہے۔ ہر ایک آپ کو 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ فائدہ کہیں اور سے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ میرا اللہ ہے۔ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، مجھ سے عہد کر رکھا ہے، وہ 1 کے بدلے میں 10 دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ اگر دنیا میں وہ اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں ہی اس کو 10 گنا دے دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے، غنی یعنی سخاوت کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے شخصیت نے اسی وقت سارا غلہ، سارا اناج اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں غریبوں، مفلسوں اور مسکینوں بیچارے لوگوں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ اس ایثار، اس قربانی، حسن سلوک، اچھے برتاؤ اور سخاوت کی اور فیاضی کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی، مہیا ہوگی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی، یعنی فوقیت دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین، نبیوں میں آخری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو
सहाबा कराम को खुदा की राह में मालो दौलत देने का कहा तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपना माल राह खुदा में पेश कर दिया, जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो सखावत की, फयाजी की बेमिसल बेनजीर तारीफ रकम कर दी। यानी उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसकी मिसाल हमें तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने अपने घर का सारा सामान लाकर रहमत दो आलम दो जहान के लिए रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया, यानी उनके कदमों में लाकर रख दिया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सरवर कायनात के बादशाह ने जब उनसे पूछा कि ए अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो, तो उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने जवाब दिया अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक़ अकबर के इस अमल की तर्जुमानी अक्कासी अल्लामा इकबाल यूं करते हैं, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अब इस शेर में देखते हैं कि अल्लामा इकबाल कहते हैं जिस तरह से परवाने की जिंदगी का महवर और मरकज चिराग होता है, वो चिराग के गिर चक्कर काटते काटते अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, इसी तरह से भरी दुनिया में बुलबुल को सिर्फ फूल ही पसंद है और वो उसी के गिर्द मंडलाती रहती है। सिद्दीक़ अकबर के लिए यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। दुनिया में अगर उन्हें किसी से इश्क है, किसी से मोहब्बत है, किसी की रजा वो चाहते हैं तो वो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के रसूल पर वो तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। जंगे यरमूक में जख्मों से चूर एक जख्मी को जब एक शख्स पानी पिलाने लगा तो उसने करीब कराहते हुए दूसरे जख्मी को पानी पिलाने का कहा। जब पानी पिलाने वाला दूसरे जख्मी के पास गया तो उसने तीसरे जख्मी को पानी पिलाने का इशारा कर दिया। तीसरे जख्मी तक जब पानी पहुंचा तो वो इस असना में, इस दौरान में शहीद हो चुके थे, अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर चुके थे। पानी पिलाने वाला वापस दूसरे जख्मी के पास आया तो उनकी रूह भी परवाज कर चुकी थी, यानी वो भी शहीद हो चुके थे। जब पहले जख्मी के पास आया तो वो भी दारे फानी से कूच कर गए थे। दारे फानी फना होने वाला घर से मुराद ये दुनिया से कूच कर चुके थे, चले गए थे। तो जब पहले जख्मी के पास आया तो वो भी इस दुनिया से चले गए थे, यानी वो भी शहीद हो चुके थे। नज़ा के आलम में यानी मौत के वक्त जब मौत बिल्कुल करीब है और शदीद जख्मी हालत में और बहुत ज्यादा जख्मी हालत में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन का ये इसार और कुर्बानी, यानी उनका जो ये इसार है बेमिसाल है, बेनज़ीर है, इस जैसी और मिसाल कोई नहीं मिलती। इसी तरह हिजरत मदीना के मौका पर मदीने जब हिजरत करके मुसलमान गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो इस मौका पर अंसारी साहबा वो साहबा हैं जो मदीने में पहले क़याम पजीर थे, और ने मुहाजिर साहबा वो साहबा हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, कि जिस अंदाज में मदद की उसकी नज़ीर मिलना भी मुश्किल है, उसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल है। यानी जब हिजरत करके मुसलमान मक्का से मदीना गए तो मदीने के मुसलमानों ने जिस तरह से मक्का से आए हुए जो सहाबी थे उनकी मदद की, इसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल है। इन वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि हम हर मुश्किल घड़ी में, हर आड़े वक्त में अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास बसने वाले, रहने वाले इंसानों की मदद करें, ताकि हमारा मुआशरा और हमारी दुनिया मोहब्बत और अमन सुकून का गहवारा बन जाए। हमें अपने इर्द गिर्द
फिर गली मोहल्ले में ज़रूरतमंद नज़र आते हैं, ज़रूरतमंद हाजतमंद नज़र आते हैं, उनकी खातिर ख्वाह मदद करनी चाहिए। यानी काफ़ी मिकदार में जिस हद तक हमसे मुमकिन हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। गरीबों, मिस्कीनों और अपाहजों को खाना खिलाकर उनकी मदद की जा सकती है। गरीबों को, मुफलिसों को, मिस्कीन बेचारे लोग जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं होते, गुर्बत होती है, और अपाहजों, माजूरों को खाना खिलाकर उनकी मदद की जा सकती है, उनके काम आया जा सकता है। गरीब खानदानों, मुफलिस खानदानों की माली मदद करके, यानी माल से, रुपए से उनकी मदद करके उनकी ज़रूरत पूरी की जा सकती है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गुर्बत की वजह से, जो मुफलिसी की वजह से स्कूल नहीं जा सकते। हम उन्हें तालीम दिलवा कर मुआशरे का कारामद मुफीद शहरी बना सकते हैं। यानी हम उनके तालीमी अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त करके उनको पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं, तालीम दिलवा सकते हैं, और इस तरह से वो माशरे के लिए एक मुफीद शहरी बन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मालो दौलत हो तो हम दूसरों की मदद करने के काबिल हो। ये ज़रूरी नहीं है हम ये समझे कि बस हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, माल हो, तभी हम दूसरों के काम करने के काबिल हो सकते हैं, काबिल अहल हो सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर अपने मुआशरे को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। हम जन्नत का नमूना बना सकते हैं, यानी ऐसी जगह बना सकते हैं जहाँ पर अमन हो, सुकून हो, खुशी हो। हमें जब एक जमात से दूसरी जमात में तरक्की मिलती है तो हम पिछली जमात की किताबों को या तो अपने स्टोर में फेंक देते हैं या रद्दी वाले के हाथ बेच देते हैं। अगर हम इन किताबों को ना बेचें तो ये किताबें उन बच्चों को दी जा सकती हैं जो माली मुश्किलात की वजह से ये किताबें नहीं खरीद सकते। यानी ऐसे बच्चे जिनके पास रुपया पैसा नहीं है और वो किताबें नहीं खरीद सकते, उनको ये किताबें देकर उनकी मदद की जा सकती है। इसी तरह हमारे मोहल्ले या हमसाए में या पड़ोसियों में कोई बीमार है और वो नहीं जा सकता तो हम उसको अस्पताल जाने में मदद कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग, किसी ज़ईफ या नाबीना या ऐसा शख्स जिसको नजर नहीं आता या देख नहीं सकता को सड़क पार करने में, सड़क अबूर करने में मदद दे सकते हैं। हसूले तालीम हासिल करने में किसी तालिब इल्म की मदद की जा सकती है। किसी हादसे के दौरान जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के जरिए, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वो इमदाद जो हादसे के फौरन बाद जो है वो पहुंचाई जाती है, के जरिए उनकी जान बचाई जा सकती है। अगर हमारे पास मालो दौलत हो यानी रुपया पैसा हो तो इससे भी दूसरों की मदद करना लाजिम है, जरूरी है। यानी अगर हमारे पास मालो दौलत है, अल्लाह ताला ने हमें मालो ज़र दे रखा है, तो जरूरी है कि अपने रुपए पैसे में से जरूरतमंदों की मदद की जाए। कुरान पाक में नेक लोगों की ये सिफत बयान की गई है, ये खूबी बयान की गई है कि वो अपने माल में से जरूरतमंदों और मुसीबत ज़दों पर, ज़रूरतमंदों, हाजतमंदों और मुसीबत ज़दों पर, मुसीबत का शिकार, परेशानी का शिकार लोगों पर खर्च करते हैं, यानी उन पर पैसा लगाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने भाई की हाजत पूरी करेगा, ज़रूरत पूरी करेगा, खुदा उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। ये कितनी प्यारी हदीस है। आप देखें कि अगर हम दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं तो उसके बदले में क्या होगा, हम उससे तवक्को ना रखें कि अब मैंने इसकी मदद की है तो ये मेरी मदद करेगा, बल्कि क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम अपने भाई की हाजत पूरी करोगे तो तुम्हारी हाजत कौन पूरी करेगा, तुम्हारी ज़रूरत, तुम्हारी हाजत खुदा पूरी करेगा। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद कर सकता है। ये दर हकीकत अपनी ही मदद होती है, दरअसल अपनी ही मदद होती है, क्योंकि हर इंसान पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। अब देखें, जब हम किसी की मदद करते हैं तो ये हम मत सोचें कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, बल्कि हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हम अपनी ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में रहते हुए हर इंसान पर अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है। अगर एक इंसान आड़े वक्त में, मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करता है तो फिर जब उस पर कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, कोई बीमारी आती है, तो दूसरे भी उस वक्त उसकी मदद करते हैं, उसके काम आते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो दूसरे भी मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करेंगे। इससे बाहमी भाईचारे को
फरोग मिलेगा, आपस के भाईचारे को में इजाफा होगा और मुआशरा भी तरक्की करेगा। आप खुद देखें कि जब आपस में ऐसा ताल्लुक होगा कि हर कोई दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होगा, कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा, सब अपने अपने फ़राइज़, अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से पूरी करेंगे, तो वो मुआशरा पुरअमन मुआशरा होगा, वहाँ भाईचारा होगा, वहाँ मोहब्बत होगी, वहाँ इसार होगा, वहाँ कुर्बानी की मिसालें आपको नजर आएंगी। तो ऐसा मुआशरा जो है वो फिर तरक्की करेगा। दीन इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है, यही सबक देता है कि लोगों में सबसे अच्छा वो है कि जितने भी लोग हैं उन सब में अच्छा कौन है, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। अब आप देखें इस्लाम ने क्या मियार रख दिया कि तुम में से बेहतर वो है, तुम में से अच्छा वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, जो इंसानियत की खिदमत करे, जो लोगों के काम आए। हमें चाहिए कि हम हर ज़रूरतमंद की, हर हाजतमंद की मदद रंग, नस्ल, जुबान, मजहब और इलाके की तफरीक के बगैर, फ़र्क के बगैर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, बहुत अहम बात यहाँ पर कर दी गई कि हम मदद करें क्या देखे बगैर कि ये किस रंग से है, ये काला है, गोरा है, हबशी है, कौन है, ये नहीं हमने देखना। हमने नस्ल नहीं देखनी, किस खानदान से है, किस कबीले से है, ऊंचे खानदान से या निचली जात से है, हमने ये नहीं देखना। वो ये क्या जुबान बोलता है, ये सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, ब्राह्मी जुबान बोलता है, अरबी जुबान बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, हमने ये भी नहीं देखना। हमने मजहब भी नहीं देखना कि ये मुसलमान है या काफिर है, ये ईसाई है या हिंदू है, और इलाके की तफरीक के बगैर और इलाके का फर्क किए बगैर कि ये आप पंजाब में रहने वाला है और मैं सिंधी हूँ, या मैं सिंधी हूँ और ये पंजाबी है, ये पठान है, हमने ये नहीं देखना। हमने किसी भी चीज को सामने नहीं रखना, किसी भी तासुब का शिकार नहीं होना, बल्कि हमने किस लिए मदद करनी है कि ये एक इंसान है और मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, मैं इसके काम आ रहा हूँ। और मकसद क्या होना चाहिए, हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, हमारा इरादा क्या होना चाहिए कि मैं अपने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। सबक के आखिर में शेर देखते हैं और बहुत खूबसूरत शेर है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब इस शेर में शायर कह रहे हैं कि अल्लाह की दुनिया देखें तो इस कायनात में दुनिया में हजारों लोग फिर रहे हैं, खुदा के बंदे, यानी अल्लाह ताला की मखलूक इतनी ज्यादा है। बनों में फिरते हैं, बनो जंगलों में फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, यानी दुनिया में देखें तो लातादाद इंसान मौजूद हैं जो फिरते हैं, जो अपने अपने कामों में मसरूफ है। लेकिन शायर क्या कह रहे हैं, मैं उसका बंदा बनूंगा, मैं उसका बंदा बनूंगा, यानी मैं उसकी पैरवी करूंगा, मुझे वो बंदा पसंद आएगा, मैं उससे मुतासिर होऊंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा, यानी जो शख्स दूसरों के काम आएगा। अब इतने लोगों में, अभी हमने पहले एक हदीस का मफ़हूम भी यही पढ़ा, अब यहाँ पे शायर भी हमें यही बात बता रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हों, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत किस शख्स की होगी, जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता होगा, जो लोगों के काम आता होगा, जो मखलूक खुदा की मदद करता होगा। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारा ये सबक जो है ये ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की कि मैं हर लफ्ज़, हर मुश्किल लफ्ज़ को आसान करके बताऊं, ताकि आप जब स्लीज करें तो आप बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, मीनिंग्स आपको साथ साथ बता दिए गए हैं। अब आप बहुत अच्छे से करके इसकी जो है वो रीडिंग आपने करनी है। ये जो शेर है, इसके शायर का नाम मैंने आपको दानिस्ता नहीं बताया। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इस शेर के शायर का नाम जो है वो खुद तलाश करना है कि ये किस शायर का शेर है। ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये कोरोना वाली मुसीबत से हमें निजात दिलाए, ताकि हम रूटीन में अपनी जो ज़िंदगी थी उसको दोबारा से चला सकें। दुआओं का ख़ास एहतमाम कीजिए, अपनी नमाज की पाबंदी कीजिए, अपने असातिज़ा को, अपने वालिदैन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।